Good morning, students, and I welcome you all. Today we are going to continue with the same chapter of science, that is pollution of air and water, and this is part 3 of our video. Now, in the previous video, students, we studied everything related to air pollution. What was air pollution, how does it occur, and what can be done to reduce air pollution. We also did the case study of our historical monument Taj Mahal. Yeah, and now in this video we will be continuing with our next topic, that is water pollution. Now students, let us understand what is water pollution. In class 7 you learned that water is a precious resource. You all know that water is a very precious resource and we all cannot survive on this planet without water. Think and list the various activities in which we need water. Can you list the activities in your daily life in which you need water? Yes students, the list will be very long. And we saw that the water is becoming scarce due to increase in population. Also due to the increase in population, the water is becoming scarce. कम पड़ता जा रहा है, पानी की किल्लत होती जा रही है. Yes, and due to industries and agricultural activities, इन सब की वजह से भी पानी में बहुत सारी स्केर्स होता जा रहा है, बहुत सारी कमी होती जा रही है. Now what is water pollution? See, water becomes dirty when we use it for washing clothes, bathing, etc. And this means that we are adding some materials to the water which spoil its quality and changes its smell and color. So you know, whenever you use river bodies or lakes or ponds, जब इसमें नहाते हैं या कपड़े धोते हैं या कुछ भी करते हैं, means you are adding something to the water. Extra materials are being added to the water which make it polluted, which make it dirty, and this changes the quality of the water. उसका smell change हो जाता है, color change होता है, and it is not suitable for drinking anymore. So whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, becomes polluted, and the substance that pollute water are called water pollutants. और इन सभी substances को हम क्या कहते हैं? Water pollutants. Whenever the harmful substances, this is the definition, very important students, such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water and water becomes polluted, the substance that pollute the water are called water pollutants. इन सबको हम क्या कहते हैं? They are called water pollutants. Now students, our next topic is how does water get polluted? कैसे pollute होता है? Let's see. First of all, there is one information about Ganga. You might have heard about the holy river Ganga, which is the one of the most important river of India. Ganga is one of the most famous rivers of the India. It sustains most of the northern, central and eastern Indian population. इन सबको sustain करती है, मतलब ये सारे जो northern, eastern and central population है हमारी इंडिया की, वो सारे पानी किसका यूज़ करते हैं? गंगा का. It is such a big and holy river. Millions of people depend on it for the daily needs and livelihoods. बहुत सारे people depend करते हैं गंगा के पानी पे for their daily needs and even for the livelihood. However, recently a study by the World Wide Fund for Nature found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world. अभी आप बोलोगे रिवर्स कैसे endangered हो जाती हैं? रिवर्स endangered हो जाती है क्योंकि वो एक डेड रिवर में कन्वर्ट होती जा रही है एकदम से. इतना ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा हो गया है कि वो सबसे 10 endangered rivers जितनी भी वर्ल्ड में है उसमें से एक गंगा है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है. Yeah, and the pollution levels have been rising for many years. We have reached this stage because the towns and cities through which the river flows throw large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. ये सब लेवल तक, pollution लेवल तक क्यों पहुँचे है ये गंगा रिवर? क्योंकि इसमें जहाँ जहाँ से ये फ्लो करती है, जिन सिटीज़ के थ्रू वो फ्लो करती है, वहाँ के लोग काफ़ी सारी गंदगी फैलाते हैं. दे थ्रो सो मैनी थिंग्स इन द रिवर. यू सी क्वांटिटीज़ ऑफ गार्बेज, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज. सीवेज मीन्स जो कचरा होता है, गटर का पानी होता है, उसको बिना ट्रीट किए उसमें डाल देते हैं. देन डेड बॉडीज़ के जो रिमेन्स होते हैं, यू नो, गंगा रिवर्स में लोगों की एक श्रद्धा है, उसमें अस्थि विसर्जन करते हैं. ऑल दिस इज़ नॉट गुड फॉर द रिवर. रिवर में ये सब चीज़ें अंदर
सेटल्ड होती जाती हैं। एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स, फूल है, दिए हैं, पूजा करते हैं, ये करते पूजा करते हैं, ठीक है, एवरीथिंग दे वर्शिप इट, बट उसके साथ साथ उसका ये भी साइड इफेक्ट है कि वो रिवर पॉल्यूट होती जा रही है, जो बहुत ही हार्मफुल है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इन फैक्ट द पॉल्यूशन लेवल्स आर सो हाई दैट द एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव. एक्वेटिक लाइफ जो है वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रही है. धीरे धीरे सारी एक्वेटिक लाइफ ख़त्म होती जा रही है, इसलिए वो एक डेड रिवर की तरह उसे ट्रीट किया जाता है. एंड दिस गंगा स्टोरी टेल अस हाउ डज वाटर गेट्स polluted. This is about the river Ganga. It shows how does the water, at what extreme level it is getting polluted. So students, to protect Ganga, an ambitious plan to save the river called the Ganga Action Plan was launched in 1985. See this, I am reading from your textbook, page 246, your NCERT textbook. Please all of you look at there. Take your textbook with you. So Ganga Action Plan was launched in 1985 and aimed to reduce the pollution levels in the river. This plan was launched to reduce the pollution levels in the rivers. However, the increasing population and industrialization have already damaged the mighty river beyond repair. उस वक्त इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो चुका था कि उसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल था. वो पॉल्यूशन से उबरना एक मुश्किल काम था. So now the government of India has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga in 2016. In short, we call it NMCG. So Indian government has launched a new mission that is called National Mission for Clean Ganga, NMCG, in 2016. Let us take a specific example to understand the situation. एक example भी दिया हुआ है आपकी textbook में. The Ganga at Kanpur in Uttar Pradesh, यूपी में कानपुर आता है, has one of the most polluted stretches of the river. River के सबसे ज़्यादा polluted area जो है वो कानपुर में है. And Kanpur is one of the most populated town in यूपी. उसका सबसे ज़्यादा population कानपुर में, यूपी में जो है वो कानपुर की है. कानपुर स्टेट सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है. पीपल कैन बी सीन बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिफिशिएटिंग इन द रिवर. रिवर में लोग ये सब काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, वॉशिंग, बेदिंग देयर कैटल्स एंड क्लोथ्स एंड ऑल दैट. सो देयर पीपल आर सीन डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन द रिवर गंगा. दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन बैग्स इनटू द रिवर. ये सारी चीज़ें भी, ये कचरा फेंकते रहते हैं रिवर में. गॉड्स एंड गॉडेसेस के जो भी आइडल्स होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, उन्हें डालना, ये सब पानी को पॉल्यूट करता है. At Kanpur, the amount of water is comparatively small and the flow of the river is very slow. रिवर का जो फ्लो है बहुत स्लो है एंड द कंपेरेटिवली जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो कम है. एंड इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5,000 इंडस्ट्रीज़. 5,000 इंडस्ट्रीज़ है कानपुर में. तो ये सारी चीज़ें जो गंदगी हैं, एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और पानी का कम होना, स्लो फ्लो होना, ये सब पानी को गंदा कर रहा है. These include fertilizers, detergent, leather and paint industries. These industrial units discharge toxic chemical waste into the rivers. काफ़ी सारा टॉक्सिक मटेरियल जो है वो इंडस्ट्रीज़ का डिस्चार्ज कहाँ में जाता है? गंगा रिवर में. दिस इज़ ऑल अबाउट कानपुर. सो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू कैन think how much pollution is being created by the just a small state Kanpur of UP. इतना ज़्यादा कर सकता है. तो जहाँ जहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, काफ़ी जगहों से ये प्रॉब्लम रिवर को फेस करनी पड़ रही है. Even many industries discharge harmful chemicals into rivers and streams, causing the pollution of water. Examples are oil refineries, paper factories, textile and sugar mills and chemical factories. These industries cause chemical contamination of water. The chemicals released include arsenic, lead and fluorides which lead to the toxicity in plants and animals. ये जो chemicals release हो रहे हैं, ये सब toxins, poison release करते हैं और जो वहाँ के जो aquatic plants and animals हैं उनको वो बहुत नुकसान पहुँचाते हैं. There are regulations to prevent this. Industries are supposed to treat the waste produced before discharging it into waters. अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर दिए गए हैं. इंडस्ट्रीज़ को एक रूल्स फॉलो करते हैं. उनको जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है पहले उसे ट्रीट करना पड़ता है, ट्रीटमेंट देनी पड़ती है ताकि सारे उसमें से टॉक्सिन्स निकल जाए. बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड. ये सब होने के बावजूद भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. एंड सो द रिवर इज़ बीइंग पॉल्यूटेड एट अ लार्ज लेवल.
The soil is also affected by impure water causing changes in the acidity, growth of worms etc. जो soil है वो भी काफ़ी अफेक्ट हो रहा है ये इम्प्योर वाटर से. सॉइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है एंड दिस इज कॉजिंग चेंज इन द एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वर्म्स एक्सेट्रा. जो सॉइल में जो यूजफुल वर्म्स होते हैं उनकी ग्रोथ को भी काफ़ी अफेक्ट हो रहा है इस गंदे पानी से. सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द व्हाट वी कैन से पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा. Sometimes untreated sewage is thrown directly into the river. Untreated sewage जो बताया था इंडस्ट्रीज रूल्स को फॉलो नहीं करती है, अपने सीवेज जो कचरा है जो भी है उसको बिना ट्रीट किए हुए डायरेक्टली रिवर में थ्रो कर देते हैं. एंड इट कंटेन्स फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा. सो वाटर इज कॉन्टेमिनेटेड विद सीवेज मे कंटेन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स विच कॉजेज डिजीजेस लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड एंड जॉन्डिस. अगर ये सब अनट्रीटेड सीवेज उसमें जाता है तो उसमें बहुत सारा कचरा भी होता है, काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. यू कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सारे भी प्रेजेंट होते हैं वो अनट्रीटेड सीवेज में. एंड दे कैन कॉज द डिजीजेज लाइक कोलेरा, टाइफॉइड एंड जॉन्डिस. ये काफ़ी सारी डिजीज़ भी हो जाती है वो गंदा पानी यूज़ करने से. स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस. दूर से देखो तो बहुत ग्रीन ग्रीन दिखता है बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एल्गे ग्रोइंग इन दैम. एल्गे होता है वो उसमें काई जम जाती है जो ग्रीन ग्रीन हो जाता है. दिस इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स में से काफ़ी सारे, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का, राइट. पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो फील्ड्स में यूज़ होते हैं और काफ़ी सारे जो ये केमिकल्स होते हैं वॉश्ड अवे एंड दे गेट मिक्स्ड विद द rivers and they contain so much chemicals and the algae this जो होता है वो algae growth को increase करता है. algal growths are there in the river and these act as nutrients for algae to flourish. These chemicals they indirectly act as a nutrients. algae के लिए वो एक nutrient का काम करते हैं and they start flourishing. वो और भी बढ़ने लगते हैं, इसलिए पूरा जो पानी है आपको green green दिखेगा. and so once these algae die ना, they serve as food for the decomposers like bacteria. एक बार algae की death हो जाती है तो वो बैक्टीरिया के लिए फूड बन जाते हैं algae जो होते हैं. so a lot of oxygen in the water body gets used up. Once these algae die फिर उसको बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है पानी में. इस वजह से काफ़ी सारा ऑक्सीजन जो होता है पानी का वो यूज्ड अप हो जाता है. तो जो एक्वेटिक लाइफ है उन्हें भी वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है एंड दे डाई बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन. सो दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच मे किल मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. So all this is indirectly creating a pollution and this pollution will definitely cause difficulty for the human beings to survive. बिना पानी के हम survive नहीं कर पाएंगे और पानी गंदा होगा तो भी हमको ही नुकसान होने वाला है. So you should always be careful that water should be जितना हो सके पानी वाटर रिवर बॉडीज़ में हमको पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. या आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको पानी भी क्लीन रखना है. नाउ यू सी, डू यू नो हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी ए पॉल्यूटेंट. गर्म पानी भी एक पॉल्यूटेंट का काम करता है. हाउ? दिस इज यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज. पावर प्लांट्स और जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनका पानी काफ़ी हॉट होता है, वो रिलीज़ करते हैं. इट इज़ रिलीज इनटू द रिवर्स एंड इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी एडवर्सली अफेक्टिंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन इट. पानी का टेम्परेचर, ओवरऑल वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर रेज हो जाता है जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है एंड दे कैन नॉट सर्वाइव इन सच टेम्परेचर्स. So students, we conclude our video here. Our next topic, what is potable water and how water is purified, we will be discussing in our next video. Yeah, thank you. Stay safe. Keep learning.